हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगांव। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सिटी ऑफ ड्रीम्स के जो शानदार द फैंटास्टिक कास्ट, एंड दैट स्टार्टिंग विद एजाज खान, प्रिया बापट, सचिन पिलगांवकर सर अगेन, एंड अतुल कुलकर्णी सर। गाइस, सबसे पहले तो अगेन सीजन 1-2 तो है, बट 3 का लिए जो एक्सपेक्टेशंस थे, जो एक्साइटमेंट थी, वो जब टीजर आया, ट्रेलर जो बेसिक आया, everyone is waiting for this one। तो फीडबैक्स रिएक्शंस तो कमाल के आ रहे हैं, बट आई स्टार्ट विद द सीजन 1 क्योंकि ये उस दौर में आया था जब ओटीटी की जो चिड़िया थी वो पंख पसार ही रही थी, एंड सेक्रेड गेम्स, मिर्जापुर, आई थिंक दिस वाज द गोल्डन टाइम फॉर द 3 बैक टू बैक शोज आए थे, सेक्रेड गेम, मिर्जापुर एंड सिटी ऑफ ड्रीम्स अगेन, एंड तीनों ने अपना एक डिफरेंट लैंडमार्क बेंचमार्क बनाया था। बट काफी कुछ था उसके बाद, काफी कुछ बोला गया था, पीपल डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस ग्रे शेड्स, नेगेटिव शेड्स, बोल्ड शेड्स, सब कुछ आया, एंड देन इट्स एवरीवेयर, इट वाज देयर। बट आप लोगों के पास जब ये आया था तब क्या था, कभी थॉट प्रोसेस क्या था कि इतना बड़ा होगा, करे नहीं करे, क्या था स्टार्टिंग? I think more than the actors, first the credit goes to Applause and Nagesh to have thought about it and to decide that we are going to do it no matter what, if any platform comes with us or not. That is where it all started. And I think then, of course, when actors are offered great roles, they are going to grab it. So it was very easy decisions, I think, for us. But to create this kind of a thing, this kind of a world, was the biggest task and biggest decision. So, congratulations to Nagesh and Applause and Disney Plus Hotstar to actually conceive this. Well, I will say that Nagesh actually wanted to make something. I mean, the City of Dreams. Why did he put his name? Why this title, City of Dreams? Actually, he wanted several stories, each having equal importance. And politics was one of the stories. That was his original idea. And people from all, everywhere, they have their own dreams. And they all are located in Mumbai. That's why this is a city of dreams. That's how he wanted to make. But ultimately, when he was with Applause, with the co-production, they are both the producers. So when he was discussing with Samir Nair, Samir said that there has to be one main story supported by the other subplots, but one plot has to be main, which can keep the audience engaged. So then Nagesh thought that let me concentrate on politics. So the main plot became politics and the other tracks became subplots. In the first season we had that, if you remember. Yeah. And then when politics, then let us make politics of Maharashtra. We have to take a state. You see, we cannot, he decided not to go for the central government at all. Let us go to the state government. So, and then he chose Maharashtra. And then he started painting all the characters. What all can happen, what drama can happen. And supported by the subplot, what kind of subplots could be. So, this is how he has conceived it. And of course, Applause, Samir and Deepak, they both were very much confident about Nagesh's efforts. He has already proved himself, but here he has proved himself again. And again and again. So I feel जब आपके पास स्क्रिप्ट आता है तब किसी को नहीं पता कि इस स्क्रिप्ट का क्या होने वाला है. Everybody just contributes to make the best project and to tell a best story in a best way possible. तो आई थिंक मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने इस स्क्रिप्ट को चुना. आई ऑडिशन फॉर द रोल, आई गॉट द पार्ट. सो एक्चुअली नगेश सर ने मुझे पूर्णिमा गायकवाड़ के लिए चुना. एंड आई फील ऑनर्ड, ब्लेस्ड दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद अ डायरेक्टर लाइक नगेश कुकनूर. जब मैं ऑडिशन कर रही थी तब मुझे बस इतनी वन लाइन पता थी एंड अ सिनॉप्सिस, स्टोरी सिनॉप्सिस दैट यू गेट कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है और नागेश कुकनूर डायरेक्ट कर रहे हैं और मैं उनके काम की बड़ी फैन रही हूँ पहले से.
So to get an opportunity to work with a director was itself a golden chance, and I couldn't have said no to the audition. मैंने ये मेरी तरफ से कोशिश की कि मैं कितनी क्लोज जा सकूं उस कैरेक्टर के जो मुझे ऑडिशन में ब्रीफिंग मिला है. And then it happened. So for me, I think he chose me, he trusted me, he believed in me कि मैं पूर्णिमा गायकवाड बन सकती हूँ और मैं इस किरदार को निभा सकती हूँ. And then it was my hard work that I wanted to live up to his expectations and deliver what he has expected out of me. So this has been the journey. Wow. और इसीलिए शायद choice का matter ही नहीं था. It is Nagesh Kuknur, so we had to do it. Okay, it does. I mean, I'll sound like I'm repeating what everyone हाँ. said. The first call that I got was for when I got a call for this role. I was like, amazing. I mean, it was godsend because I was looking for something like this. I was looking for something to break the mold of the kind of roles that I have been known for. It was a very powerful role. It was a very grey role. And I remember when I tested for it, I just gave one take. I was like, "Theek hai, kya kiya nahi?" I wasn't expecting a call back. And Nagesh sir called me from the States. And we had like a 5-minute brief conversation. And that was it. And then I surrendered myself completely to Nagesh sir and the role. And it was a very, very enjoyable experience. Every day I used to look forward to going on the set and working with brilliant actors like this. And thank God for that. Yeah, we'll also thank God for that. Yeah. All 4 of you are fabulous in this show. And now we are talking about season 3. So तो यू नो जस्ट ये जो सीजन में है या जो शो में है, ये कैरेक्टर्स वैसे नहीं जितना आप लोगों ने इतना सारा काम किया है, जो बाकी के रोल्स होते हैं उसके सामने ये बहुत डिफरेंट है. हर एक के कैरेक्टर्स में एक डिफरेंट साइड है. आपका तो बहुत डिफरेंट है, आपका भी, सबका चारों का वैसा है. बट जब गैप के बाद एक वापस आप जब शो करते हैं तो गेटिंग बैक इनटू दैट सेम स्किन, सेम थिंग, और आपने शो देखे हुए सीजन 1 हो गया, 2 हो गया, लोग आके तारीफ कर रहे हैं, इतनी कुछ चीजें हो रही, उसके बाद वापस जब सीजन 3 में जाते हैं तो कौन सी बातें होती है जो कि भाई ये गलती से ये ना हो जाए या ये चीज का ध्यान रखना है? नहीं, हम तो पूरा, मतलब मेरी बात कर रहा हूँ मैं, बाकी आई Right. डोंट नो, बट मैं तो पूरा छोड़ देता हूँ नगेश पे. वो बराबर गाइड करने वाला है, बराबर रहबर जिसको बोलते हैं वो नगेश. और वो जो कहता है उसको सुनो, समझने की कोशिश करो और डिलीवर करो. Okay. उससे ज्यादा बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको. आपको ये प्रूव बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं. नहीं, डायरेक्टर जो बोलता है, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, दैट्स व्हाई आई विल ऑलवेज फॉलो माय डायरेक्टर. मुझे थोड़ा प्रिपरेशन करनी पड़ती है. आई फील अगर किसी 2 सीजन्स के बीच में, ना सेकंड सीजन और थर्ड सीजन के बीच में अगर कुछ महीनों का, साल का गैप हुआ है तो यू हैव टू रिविजिट द सुर ऑफ द कैरेक्टर. तो स्क्रिप्ट तो सबसे पहले आता है क्योंकि स्क्रिप्ट आपको सब कुछ देती है इंफॉर्मेशन उस कैरेक्टर के ग्राफ के बारे में, इस सीजन के जो आपको चाहिए, जो नेसेसरी है. इसके अलावा आई फील आई डेफिनेटली गो एंड रिविजिट द सीन्स ऑफ द अर्लियर सीजन. कुछ सीन्स, पूरा सीजन नहीं देखती हूँ लेकिन देखती जरूर हूँ ताकि मुझे वो सुर सही मिले. फिर जाके सेट पे अपने हिसाब से एक टेक करते हैं, नगेश सर जैसे बोलते हैं वैसे उसको ऑल्टर करते हैं, उसको बदलते हैं. And then obviously, like sir said, then you just surrender to the director because he has written the show, he knows his characters, and he definitely will guide you in a right direction. So then that's it. You guys would like to add? हमारा एक घर होता है, हम घर में रहते हैं और 3-4 महीनों के लिए बाहर जाते हैं और वापस Okay. आते हैं. तो वापस आने के बाद ऐसा नहीं होता कि बेडरूम की जगह बाथरूम में चले जाएं. Wow, nicely said. तो हम बेडरूम में ही चले जाते हैं. लेकिन जब पहली बार घर खोलते हैं या 3 महीनों के बाद घर देख रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा अलग तो आपको लगता ही है. थोड़ी सी उसके साथ एक थोड़ी पहचान फिर से बनानी पड़ती है हम लोगों को. तो मेरे ख्याल से ये जो फॉर्मेट है उसके साथ यही है कि पहला सीजन जब आप करते हैं तो आप अपना घर बना लेते हैं, तो फिर अपना घर भूलते नहीं हैं आप. आप चाहे 2 साल के बाद भी आ जाएं, वो आप थोड़ा सा यहाँ वहां करके आप बिल्कुल बेडरूम में ही घुस जाएंगे सोने के लिए, और नहाने के लिए बाथरूम में ही घुस जाएंगे. यार मुझे पहले सीजन में बहुत फ्रीडम दिया गया था पहले ही कुछ दिनों में कि मैं वसीम खान को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करूँ और उसके बाद नागेश सर ने एडीज को भी समझाया था, डोंट डिस्टर्ब हिम, ही नोज़ द जॉब. तो
लेकिन सेकंड सीजन आते आते कभी कभी मैं बाथरूम में घुस रहा था तो मुझे सर ने मतलब आई हैड अ वेरी ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन विद हिम कि सर ऐसा ऐसा लग रहा है कि मैं मिमिक कर रहा हूँ, हम्म, मैं सोच रहा हूँ कि वसीम का कैसे करेगा और मैं एंड इट्स नॉट फीलिंग ऑथेंटिक. तो ही सेड टेक इट इजी, डोंट वरी, कोई प्रेशर नहीं है, अगर तू गलत करेगा तो मैं बोल दूँ. तो ही इज दैट काइंड ऑफ अ डायरेक्टर एंड हिज ग्रामर विथ मी वाज दैट. और मुझे लगता है कि विथ इन माय लिमिटेड एक्सपीरियंस जितने भी डायरेक्टर्स के साथ मैं काम कर चुका हूँ, माय मोस्ट कंफर्टेबल work has been this. Most challenging also, but most comfortable because I understand his language. अभी तो 5 सालों में we understand each other more than हमारे घर वाले थे क्योंकि we've been most vulnerable in front of him. So it's been a very challenging but a very honest and pleasurable experience exploring and coming back to Wasim. You know, इसके बाद भी बहुत सारे पॉलिटिकल शोज ने लोगों ने कोशिश की, पॉलिटिकल शोज बना, एक आध दो ने थोड़ा कुछ अपना एक बेंचमार्क बनाया, बाकी तो सब रिप्लिकास लग रहे थे. बट व्हाट मेक्स दिस शो सो डिफरेंट कि सीजन 3 भी आगे, बाकियों का तो कुछ हुआ ही नहीं, अता पता लापता हो गए. मतलब देर किसी ने यूपी पॉलिटिक्स पकड़ा, बिहार पॉलिटिक्स, सेंट्रल भी हुआ, उसमें सब रेज भी हुआ, बट नथिंग टू मैच अप टू दिस. व्हाट डू यू Soul, The focus, Because this is not a political show. the That's soul. why. ये फैमिली ड्रामा है. जी. पॉलिटिक्स एक उसका प्लेटफॉर्म है, बट एक्चुअली इट इज अ फैमिली ड्रामा. इट्स अ स्टोरी ऑफ अ फैमिली. उस फैमिली के साथ क्या है, और पर्टिकुलरली उस फैमिली से जुड़े हुए लोगों के साथ क्या होता है, और उन लोगों की वजह से फैमिली के साथ क्या होता है. अल्टीमेटली कहीं से भी आप जाइए, आप आएंगे फैमिली पे ही. बस हमारे फैमिली के सारे मेंबर्स पॉलिटिक्स में हैं. और एवरी सीजन के साथ कम होते जा रहे हैं उनके family में. हाँ, पहले सीजन में भाई गया, दूसरे सीजन में बेटा गया. कौन जा रहा अब आप देखिए, कोई जा रहा है या कोई आ रहा है. है? सिंस आप तीन यहाँ पे, तो एक कुछ जस्ट सवाल है सब मराठी सिनेमा से रिलेटेड. यू बिलोंग टू दैट गोल्डन दौर ऑफ द लास्ट ऑफ द स्टार्स फ्रॉम मराठी सिनेमा. कि एक वक्त था जब कहते थे सचिन सर है, अशोक साहब सर है, लक्ष्मीकांत बेर्डे सर है, तो जो स्टार्स सिस्टम होता था वो उसके बाद खत्म हो गया. विल कम टू अतुल सर, योर्स एंड आप लोगों की सिनेमा पे, बट वो एक चीज खत्म हो गया जिसके बारे में कई दफा कहा गया था कि आज अगर मराठी सिनेमा में एक उसके बाद कोई बड़ा स्टार होता, दैट सिनेमा लेवल वुड हैव गॉन टू अ डिफरेंट थिंग, जो 80s एंड 90s के दौर में था. आप क्या कहना चाहेंगे सर? भाग्य. I feel fortunate that I was in that era in which I could contribute, in which people accepted what I made, and Ashok did or Laksha did. People लोगों ने उसका स्वीकार किया और अपने दिलों में हमको जगह दी. वही वजह है कि लोग हमें स्टार समझते हैं. हम अपने आप को कभी नहीं स्टार ना समझे हैं और ना समझते हैं, लेकिन लोगों की नजर में अगर हम हैं तो ही हम स्टार्स हैं. इतना याद रखिए. तो वैसा उस दौर में हुआ, उसके बाद नहीं हो पाया. बिकॉज क्या होता है ना, स्टार बनने का मतलब क्या है? 2-2.5 घंटे की फिल्म आप अपने कंधे पे उठा के ले जाते हो, उतनी सक्षम उतने आपको होना पड़ता है. इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग. देखने के लिए तो आपको आसान लगता होगा सब कुछ, लेकिन नहीं, 2-2.5 घंटे की फिल्म अपने कंधे पे उठा के लेके जाना, उसके लिए हिम्मत लगती है. तो वो हिम्मत जुटाना सबसे पहले जरूरी है. स्टार अभी भी बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? क्या वो ऐसा कुछ था कि भाई ठप्पा लगा हुआ था कि वही एक 80s हैं या 90s हैं, उसी दौर में स्टार बन सकते हैं भाई, ना उसके बाद नहीं बन सकते? ऐसा नहीं है. ये हमारे सौभाग्य से हमें ऑडियंस उतना स्ट्रांग मिला जिनकी बदौलत हम स्टार बन पाए. उसके बाद जो मैं वही बात कर रहा था, जब एक डिफरेंट दौर आया विच वाज द 2000 एरा व्हेन यू गाइस वेंचर्ड. नटरंग में तो आपने जो कमाल किया था, योर फिल्म्स वी स्पार्क्स फर्स्ट से लेकर, एक वो दौर था जब बिफोर आजकल जो मलयालम सिनेमा का जो दौर जो चल रहा है, लोग ओटीटी के बाद आ रहे हैं, दे आर गोइंग गंगो ओवर मलयालम सिनेमा. बट ये मैंने अक्सर कहा है हर बार कि मराठी सिनेमा वेंचर्ड इनटू दिस लॉन्ग बैक, making those type of heartfelt films or something, breaking the barrier and everything. But again उसके बाद एक चीज आया कि वो भी खत्म हो गया, एक अचानक से ब्रेक लग गया. तो आज वो दौर कहीं पे है, ना स्टार सिस्टम चल रहा है, ना उस दौर की फिल्में बन रही है. What went wrong आप लोगों के साथ?
Nothing, I guess. I don't think it is as dark a picture as you're painting. It is not. होना चाहिए था कि it would have people coming on OTT should have No, discovered we these must films. understand one thing, that every language comes with its own culture and politics, and its space in the entire socio-political scenario. So we always very wrongly compare South Indian films, which again, those 4 languages and 4 cultures are completely different. You cannot compare one, industry with the other. The languages which are closer to Hindi, they all, not only Marathi, but you take Bhojpuri or Gujarati and all that. So it is a cultural, kind of limitation that anyone would have, because you are closer to the biggest industry that we have. So it will always have its own challenges, and it will have its own graph. Unlike with the languages which are not closer to Hindi. So it's a completely different socio-political scenario, and you have to understand that. Unless and until I think media understands it and takes it to the people after studying it very closely, we will be portraying wrong impressions in front of the people, as far as we put one language against the other. I think that is not the correct way of looking at it, because cinema or any art is a very small thing in the life of a public intelligence. It is, or public life. The bigger aspect is socio-economical political thing. I actually don't want to add anything, but I can just say मैं इन सबसे बहुत छोटी हूँ, और अगर मेरा मराठी इंडस्ट्री का भी करियर स्पैन देखा जाए तो कुछ 12-15 फिल्में की हैं मैंने. इनका करियर ग्राफ तो बहुत लंबा है. I can only say that for me, आज अगर आप मुझसे पूछे कि मेरी सबसे फेवरेट मराठी फिल्म कौन सी है, मैंने इसके पहले वाले इंटरव्यू में भी बोला बनवा बनवी. इट हैज टू बी बनवा बनवी, दैट्स इट. बट as the time is changing, generations are changing, the storytelling is changing. I'm also a fan of Vadu, which is Atul's film, Natarang, which is Atul's film, the film that we did together, Happy Journey. I'm also a great fan and an admirer of films which are made this year, Godavari, me, Vasantrao Deshpande. So I don't think the content is dying. I don't think that the people are not coming. Of course, there is, now these are different aspects. किस फिल्म के लिए लोग जाते हैं, किस फिल्म के लिए नहीं जाते हैं, all that is a business deal and that's a different thing for me. But I think the storytelling is changing, the generation is changing, and so the way they are narrating the story is also changing, because the audiences are also learning. They are also exposed to a lot of different content, so they know. आज वो बैठ के स्पेनिश फिल्म देखते हैं, अमेरिकन फिल्म देखते हैं, they are going to compare because they are getting a variety of content available. And our makers are also learning, getting educated abroad about the filmmaking. In India, there are so many institutes, they learn, they come back and make a film. So the narrative has changed. So I don't want to sit and compare all of that. I think I am born in a great generation where I get to play stronger parts in the storytelling, whether it is a Marathi film or it is OTT platform like City of Dreams third season. Nicely और summed. दूसरी बात ये भी है कि अगर फिल्म चली नहीं है ठीक ठाक, इसका मतलब वो बुरी फिल्म है ऐसा Of नहीं course. होता. Yeah. या एक फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है, इसका मतलब वो फिल्म बहुत अच्छी है ऐसा भी नहीं जी. होता. इट डिपेंड्स कि किसके नसीब. हर फिल्म अपना नसीब लेके आती है, हर फिल्म. Yeah. तो उस नसीब में जो होता है वो होता है, बट उसके कंटेंट को आप नहीं हिला सकते. ठीक है, नहीं चली होगी फिल्म, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको वो फिल्म बेहद पसंद आती है, क्योंकि वो फिल्म बुरी नहीं होती. Of course. एजाज, आपके कई फैंस के मैसेजेस आए थे. एक तो ये था कि टीवी पे तो आपने इतना धमाल, लड़कियों के ज्यादा मैक्सिमम, या वही था. मैं आ रहा था मेरे ऑफिस से भी. Ijaz and fire. सो पॉइंट इज, स्टारडम की बात करेंगे तो यू टीवी पे तो यू एंजॉयड इट, बट एक कईयों का मानना है कि बिग बॉस के बाद जस्ट वेंट टू द डबल रेटिंग, पूरा 2.0 हो गया था, एक डिफरेंट एजाज खान साइड. कितना, हाउ डू यू एंजॉय दैट, एंड क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? पता नहीं यार, आई एम स्टिल कमिंग टू टर्म्स विद इट. Stardom is a very loaded word. It comes with its own trappings, especially मेरे जैसे इंसान के लिए. Sometimes you tend to take yourself a little more seriously, जो अब मैं सीख रहा हूँ.
एक रियलिटी टीवी स्टार बहुत अलग स्पेस है उनकी. मैं कोशिश कर रहा था फिट इन होने की, बट that is not actually what I am. Of course, I'm very, very thankful, very grateful with the kind of popularity जी. that I've got, but that doesn't necessarily make me a good actor. My journey is a little different. I want to explore. I want to push my limits. I want to work with great makers, great actors, and that gives me a little more satisfaction than being recognized or being popular. So I try to stay away from it, and now that I'm committed, I try to stay away from girls. तो सवाल तो बहुत सारे हैं, अरे लेकिन वक्त बिल्कुल, कब से कहा जाए. girls ही popular है. Girls कर रहे हैं. Fire. देखो सर ने भी कहा, सबको पता है. Exactly. So, मैं as I जैसे said, कि मैं देख झूठ ले रहे बोल रहा हूँ, अभी इनका मतलब है ट्रेलर मैं के झूठ नीचे वसीम खान और इजाज खान के लिए की कमेंट्स देख. thank you guys, thank you so much, and Thank all you, the best thank for all your future ventures. Thank you so much. Thank you. Thank you. सिर्फ एक बात बताना चाहेंगे Yes. जो हमारे व्यूअर्स Yes. हैं, जो आपके श्रोता हैं, उनको सिटी ऑफ ड्रीम्स सीजन 3 26 मई को आ रहा है, 26 मई ऑन डिस्नी प्लस हॉटस्टार. और एक ब्रेकिंग न्यूज है कि आज से डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने पहले सीजन के सारे जो 10 एपिसोड्स हैं वो फ्री कर दिए ओह. हैं. तो विदाउट सब्सक्रिप्शन आप सिटी ऑफ ड्रीम्स का पहला जो सीजन है वो देख पाएंगे. तो पहला सीजन देख लीजिएगा, फिर सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरा सीजन देख लीजिएगा, और 26 मई को देखिए सिटी ऑफ ड्रीम्स सीजन 3. थैंक यू सो मच. Thank you.